Alright, तो 40 minutes time limit होता था, I guess that वो up हो गया था, so hence restarting the lecture. Um, कहाँ तक सुना था before my voice cut off? Like to कहाँ तक सुना था? Like where did you understand it before the class like discontinued? Standardization and is it replicable? Alright, demand characteristics could demand characteristics हो गया था? Like people filling it out self report है तो like they could be non-serious by filling out, hence invalid results आ सकता है. All right. Yeah. Regarding the individual situation, okay, feeder किसको responsibility दे रहा है? Like, is the personality or the person is क्या कहते हैं? Is the factor or is the situational यहाँ पे factor? तो यहाँ पे कह सकते हैं, as the answer stated, that जो feeder का जो leadership का effectiveness है, as in which style would be effective where is depending on the situation. For example, as the diagram, जहाँ पे power and control ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे different type of leadership style कामयाब होगा, and जहाँ पे power and control थोड़ा कम चाहिए होगा वहाँ पे different type of leadership कामयाब होगा. So the effectiveness of leaders leadership style is based upon the situation. ठीक है वो अपनी जगह. अच्छा. All right, number two. उसके अलावा uh, what leadership style the person gets on the questionnaire, ठीक है, is gonna be coming down to the individual personality itself. So how the person responds on this questionnaire is gonna be due to the personality that they have. ठीक है ना? Are they gonna be someone who prefers human relationship over work, or are they gonna prefer work over human relationship? So जहाँ जो यहाँ पे आंसर देते हैं that's gonna be dependent on their personality. So this is gonna be individualistic side of the debate in individual situational, and जो भी personality जो भी इनका जो leadership style निकल के आता है, whether it is going to be effective or not in the particular situation, organization is gonna be depending on the situation कि हर organization अलग होता है. So that is gonna be the situational debate. तो यहाँ पे दोनों लगेंगे, individual भी लगेगा, situational भी लगेगा. Is it clear कि दोनों कैसे लग सकते हैं या यहाँ पे अभी तक कोई confusion है? Alright. ये हो गया. यहाँ पे नेचर नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ना आप यहाँ पे किसी को सिखा रहे हो, you're not doing anything यहाँ पर. और नेचर नेचर individual situational free will deterministic. Alright. फ्री विल डिटर्मिनिस्टिक भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा इन वन सेंस, लेकिन अगर जबरदस्ती अप्लाई करना चाहो तो इस तरह अप्लाई होगा कि see the situation that the leader find himself in, as in the amount of power and control you need, right, in that particular setup would determine what type of leader is needed. As in what I'm trying to say आसान लफ्जों में, that the leader himself cannot choose to be a leader in that situation. The situation will dictate कौन सा लीडर यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए. एज इन जेल के अंदर, राइट, फॉर एग्जाम्पल जेल वाला सेटअप के अंदर कोई आके खड़ा नहीं हो सकता कि मुझे यहाँ पे लीडर बनना है जिसका भी दिल चाहे. जेल खुद जेल का सेटअप ऐसा है कि जेल खुद डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ पे कामयाब होगा कौन यहाँ पे कामयाब नहीं होगा. सेम फॉर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल. सो सिचुएशन विल डिसाइड वेदर आप यहाँ पे इफेक्टिव हो कि नहीं, और द सिचुएशन विल डिसाइड कि यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ लीडर चाहिए. आप अपनी मर्जी यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते. सो हेंस इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इज द इज द एनवायरनमेंट दैट्स इन कंट्रोल. सो हेंस इट इज डिटरमिनिस्टिक क्योंकि आपके हाथ पे नहीं है. ठीक है.
एप्लीकेशन को बता दिया कि एप्लीकेबल वगैरह है। ऑलराइट, सो डज दिस थ्योरी इवन वर्क और नॉट, कि फील्डर कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल काम होता है कि नहीं होता। सो देयर इज दिस रिसर्च बाय रिगियो कि टास्क ओरिएंटेड लीडर्स आर यूजफुल जब चीजें इंतहाई बिगड़ी हुई हो, ठीक है ना, या जब चीजें बिल्कुल अच्छी हों। सो व्हेन द सिचुएशंस आर लाइक एक्सट्रीम, जहाँ पे चीजें स्ट्रक्चर्ड हैं, कोई मसला नहीं है, सब स्मूथ चल रहा है, या चीजें सब बिगड़ी हुई हैं, वहां पे आपको टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए होता है, क्योंकि काम से मतलब है ना। तो जब चीजें बिगड़ी होंगी तो बंदा काम निकलवाएगा, काम करेगा, सब सही करेगा। और जब सब कुछ सही चल रहा है तो वो काम को सीधा ही रखेगा, मेंटेन रखेगा। तो दैट्स व्हाट टास्क ओरिएंटेड लीडर इज मोर इफेक्टिव। लेकिन जो बीच में आता है, मिडिल ग्राउंड, जहाँ पे चीजें सही हैं, नहीं ज्यादा खराब भी नहीं, लेकिन बेहतर हो सकती है, बेहतर हो सकती है लेकिन खराब भी नहीं है और इतनी भी सही नहीं है, वहां पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड बंदा चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू रेडियो, बिकॉज वहां पे बंदे काम को सब पता है क्या हो रहा है, वहां बंदे मोटिवेटेड नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई बंदों को मोटिवेट करके यू माइट देन मेक देम अटेन दैट एक्स्ट्रा स्टेप, जहाँ पे सब कुछ स्मूथली चल जाए। तो जहाँ पे इस अ मिक्सचर फेवरेबल अनफेवरेबल, वहाँ पे रिलेशनशिप ओरिएंट चलेगा, जहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशन है वहाँ पे टास्क ओरिएंट वाला बंदा चलेगा अकॉर्डिंग टू रिगियो। सो रिगियो की रिसर्च इज एक्टिंग एज अ सपोर्टिंग एविडेंस फॉर फीडर की थ्योरी के, यार फीडर वाज राइट इन सेइंग के डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर्स डिफरेंट लीडर्स। भारत, yep, ठीक है। वन थिंग, हाँ, कि फीडर की थ्योरी जो थी, इट केम इन लाइक 1969, राइट, 67, 1967 के हिसाब से कंपनीज ऑब्वियसली अलग होती थी, क्योंकि इंडस्ट्री से लगता जमाना लगता। तो नाउ इट्स 2020, राइट। नाउ वुड फीडर्स थ्योरी बी एप्लीकेबल इन 2020, सेइंग कि नहीं, टास्क ओरिएंटेड रीडर, ह्यूमन रिलेशनशिप ओरिएंटेड यहाँ पे सही, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब डायनामिक्स बदल गए, वर्क फ्रॉम होम है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, गूगल बकायदा लोग को कैजुअल कपड़े मारने देता है, भले उनका काम काम से काम रखता है, राइट। सो दे खुड बी, हो सकता है कि फीडर की थ्योरी जो थी 1960s या 70s के साथ सही हो, may not be applicable now because of number one, work from home phenomena, the working dynamics पहली बार बदल गया, and industries different आ गई, जहाँ पे different requirements चाहिए होंगे। तो क्या पता फीडर की थ्योरी शायद अब applicable ना हो, क्योंकि work dynamics बदल गए from then, from that era. So that's why Fielder theory may not be applicable in today's age. क्या पता। So that is Fielder. यहाँ तक कोई मसला? ईमान, क्या सीन है? Alright. Alright, so I'm gonna give you guys homework. ठीक है, homework क्या है Fielder के theory के बारे में होती है। Homework is this. ठीक है ना, this is your homework. You're supposed to create a, इसमें बेसिकली बताता हूँ, 4 पैराग्राफ होंगे, 4 पैराग्राफ्स, ठीक है। 2 सपोर्ट में जाएंगे, 2 अगेंस्ट में जाएंगे। 5वां पैराग्राफ अभी मत लिखना, लिखते हैं 5वां, लेकिन 5वां तुम लोग का कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन अभी लिखना नहीं आएगा। सो जस्ट टू राइट 2 पैराग्राफ अगेंस्ट में, 2 पैराग्राफ सपोर्टिंग में, एंड तुम्हारा कंटेंट कहाँ से आएगा? इन थ्योरी से आएगा, सही है। इन इस एरिया के अंदर घूमते रहोगे, एंड इस थ्योरीज को देख देख के सपोर्टिंग पॉइंट ढूंढोगे, और इस थ्योरीज को देख देख के निगेटिंग पॉइंट्स ढूंढोगे। Para. So that's gonna be a homework. I know थोड़ा मुश्किल है, but I wanna see how you do it. Okay, if you don't do new things, you won't learn again. So that's your homework. यहाँ पे कोई मसला? Slide 24 में question. Alright, ठीक है, तो that's it for today's class. But I'm gonna see you guys on Saturday. ठीक है ना? You guys have enough time to do the homework. ठीक है? दूसरी चीज, 18 जनवरी का जो तुम लोग का सीन है वो पता लगा लेना, फिर मुझे अपग्रेड दे देना।
उसके बाद जैसे ही मुझे पता चल गया देन आई एम गोना फिगर आउट कि तुम लोग का क्विज का क्या सीन है, कि आई नीड टू टेस्ट यू गाइस कि हाउ यू प्रोग्रेसिंग यहाँ पे। तो मुझे फीडबैक दे देना टीचर से क्या मतलब, देन आई एम गोना फिगर आउट कि क्विज कब लेना है। ठीक है गाइस, या, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।